সাত নম্বর রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করলেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মাননীয় রাজ্যমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ মহাশয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী অর্গানন্দ মহারাজ, জিবি মেম্বার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর স্বামী ভেদানন্দ মহারাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর স্বামী নিত্যরূপানন্দজি মহারাজ, সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর। প্রধান অতিথি, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে তো ছিলেনই শ্রী সঞ্জয় শেঠ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রী শ্যামল কুমার দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর, শ্রী দীপক শ্যাম রায়, জেলা জজ তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর, স্বামী সুখদানন্দ মহারাজ, জিবি মেম্বার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ব্যারাকপুর। এছাড়াও অন্যান্য অতিথিবৃন্দরাও উপস্থিত ছিলেন। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আরবান টাইমসে মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার ও লাইক করবেন। এই খবর দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম মন্ত্রের 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আপনারা দেখছেন 7 নম্বর রিভারসাইড রোডে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন প্রাঙ্গণে।
नमस्कार। आज की शाम आपको बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से हमारे बीच में मंत्री जी पधारने वाले हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शिवरात्रि का उपवास होगा और आप काफ़ी समय से यहाँ आए हुए हैं। आपको थकान भी लग रही होगी, लेकिन जब कोई बड़े काम किए जाते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां भी उठानी पड़ जाती हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि विवेकानंद मठ में देश के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी पधार रहे हैं और वो अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि जब मंत्री जी आए तो उनका जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजा करके स्वागत करें और इतनी तेज तालियां बजाएं कि ये अनुगूंज दिल्ली में मोदी जी को भी सुनाई पड़े कि उनके मंत्री का यहाँ पर कितने जोरदार ढंग से स्वागत हुआ। बोल बोल। हेलो 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 स्टॉप हेलो हेलो हेलो। मंत्री जी पधार चुके हैं, उनकी गाड़ी कैंपस में प्रवेश करने वाली है। मंत्री जी का जोरदार रूप से स्वागत करते रहिए, तालियां बजाते रहिए। जोरदार तालियां खूब के अच्छे से मंत्री जी का स्वागत कीजिए। मंत्री जी हमारे मंच पर पधार चुके हैं। आज हमारे इस विवेकानंद प्रांगण का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री जी हमारे इस प्रांगण में पधारे हैं। जोरदार ढंग से और थोड़ा सा तेज। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बीच माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी पधार चुके हैं।
ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानां तम गतिं परमेश्वर। शिवरात्रिर आज के पूर्ण एवं पवित्र दिने सबाइके शिवेर काছে খাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি যাতে মঙ্গলময়ের কৃপায় সবার মঙ্গল হয়, কারণ তিনি মঙ্গল দাতা, তিনি মঙ্গল দেন বলেই সারা জগৎ চলছে। সেই জন্য প্রার্থনা করছি। এরপর আমার স্পিচটাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি। Respected Honorable Minister Sri Sanjay Shetji, Ministry of Defence, Government of India, and other distinguished guests, government officials, well-wishers, guardians, teachers, and my dear students. I welcome you all in this golden moment of history of Ramakrishna Vivekananda Mission, and thank you very much from the core of my heart. I express my special respect and gratitude to Honorable Minister Sri Sanjay Shetji for his kind presence and participation in our Golden Jubilee celebration as chief guest of the program. I pray to Sri Ramakrishna Paramahamsa, Mahasharada, Swami Vivekananda and Lord Shiva for bestowing good health and spiritual upliftment for Sri Sanjay ji. I also pray for good health and spiritual development who have joined this program today. Ramakrishna Vivekananda Mission was started by a visionary monk, Swami Nityananda ji, on 1st November 1976 with a mission to put into practice the special teachings of Swami Vivekananda that God worship in man, puja of Shiva in Jiva. You will be amazed to know that the institution which started only with 20 tribal children, now taking care of more than 1200 poor children and destitute children, including physically challenged girls, through its 40 branches spread in many states of India. Moreover, Swami Nityananda ji started the school with a vision to implement Swami Vivekananda's dream of man-making, character-building education. Now nearly 20,000 students are getting man-making, character-building education through various educational institutions run by this mission in a purely Sanatani Hindu tradition of our country without any distinction. This place has been glorified by memorable visits of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam in the year 2003, Sri Pranab Mukherjee in the year 2013, and Honorable former President of India, Sri Ramnath Kovind in the year 2025. This day is very auspicious day due to Mahashivaratri. And on this very day, the statue of living Shiva of modern age, Swami Vivekananda, has been inaugurated by Honorable Minister Sri Sanjay Shetji. Perhaps you do not know that Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda visited Barakpur cantonment during their lifetime as described in many research works. In Sri Ramakrishna Kathamrita, it is mentioned in several places that he visited the Chamak of British India, and he had a good relation with a Subedar of Paltan named Kuwar Singh, and also visited Annapurna temple adjacent to Barakpur cantonment many times. The record shows that Swami Vivekananda also came to Barakpur cantonment during his frequent visit to ashram of Gaurima, situated at the time within area Palta waterworks near Ganga. Later on the ashram was closed. Swami Vivekananda's brother disciple, Swami Abhedananda ji, visited Barakpur cantonment near Golaghat of this cantonment and started a small temple over there. His another brother disciple, Swami Akhandananda ji, also came to Barakpur cantonment during his several visits to the house of great freedom fighter Rashtraguru Surendranath Banerjee in his house at Monirampur. So the inauguration of the statue of Swami Vivekananda in Golden Jubilee celebration of Ramakrishna Vivekananda Mission and 250 years celebration of Barakpur cantonment is a very appropriate and historical. Our future project is to increase the poor and destitute students and also spread the message of Swamiji's God worship in man in every corner of this country. With a view to this, we have started installation of 50 Murti of Swami Vivekananda in different places of state and our country, and you will be happy to know that we have already installed such 15 Murti of Swami Vivekananda free of cost in West Bengal, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand. Anybody
can appeal to us for such free installation of Swamiji's Murti. We believe that the light of Swamiji's life and message can only dispel our physical and mental darkness for becoming a good citizen of India. At the end, we are happy to arrange the program during the national celebration of 150 years of Vande Mataram, written by legendary Bengali personality Rishi Bankim-Chandra Chattopadhyay. Now I conclude my welcome speech with my sincere thanks and gratitude to Honorable Minister, distinguished officials, respected guests and all other persons who have assembled in the program. I pray to Honorable Minister and guests on behalf of the mission to extend his kind support for furtherance of our goal of God worshipping man. Vande Mataram, Jai Hind. स्वामी जी के भाषण के लिए जरा जोरदार ढंग से तालियां बजा दीजिए एक बार। अब हम अपने माननीय मुख्य अतिथि के कीनोट के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक दो बात शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं माननीय मंत्री जी के आधिकारिक आवास पर कुछ दिन पहले गया तो जो सिटिंग रूम था वहां पर बहुत सारे लोगों के चित्र लगे हुए थे, फोटो लगी हुई थी, लेकिन सबसे पहली फोटो विवेकानंद जी की लगी हुई थी। हमें ये स्वामी विवेकानंद के प्रति इनका ये लगाव देख करके मुझे पूरा दृढ़ विश्वास हुआ कि हमारे मंत्री जी हमारे प्रोग्राम में जरूर आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। मंत्री जी की सरलता और सहजता लोकसभा सचिवालय में हर एक अधिकारी को पता है। मैं कुछ दिन पहले लोकसभा सचिवालय में हमारे एक अधिकारी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो उनसे मिला और हमें यहाँ की मतलब मुख्य अतिथि के रूप में किसी को आमंत्रित करना था, तो मैंने 2-3 नाम उन्हें सजेस्ट किए, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका नाम सर सजेस्ट किया कि आप माननीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी से मतलब उनको लिखिए और वो जरूर आपके कार्यक्रम में आएंगे। ये हमारा लोगों में ये आपका जो आपकी साख बनी हुई है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है, सहजता की, सरलता की क्रेडिबिलिटी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी अनूठी छाप छोड़ते हैं। आपके लिए मैंने आज कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं और उन 2 पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आमंत्रित करूँगा कि इतना अच्छा आपसे मिलकर लगे, इतना अच्छा आपसे मिलकर लगे कि हर तरफ ही खुशनुमा मंजर लगे, कि हर तरफ ही खुशनुमा मंजर लगे। मुस्कुराहट भी नहीं कम आपकी, मुस्कुराहट भी नहीं कम आपकी, पर हंसी तो और भी सुंदर लगे, पर हंसी तो और भी सुंदर लगे। हमको आप अच्छे लगे हैं इस तरह, हमको आप अच्छे लगे हैं इस तरह, बेघरों को जैसे अच्छा घर लगे, बेघरों को जैसे अच्छा घर लगे। आप हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा हैं, आप हमारे लिए बहुत बड़ा संबल हैं और आपके कारण ही हम दूसरों का सहारा बन पा रहे हैं। ये मिशन इतने लोगों को सहारा देता है, संबल देता है और उनके अध्ययन पढ़ाई का खर्चा उठाता है। वो सब इसीलिए संभव हो पाता है कि आप जैसे लोगों का वरद हस्त हम पर रहता है। मैं अब माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री संजय सेठ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। जोरदार ढंग से एक बार फिर स्वागत कीजिए इस तालियों से। আপনারা এই মুহূর্তে মঞ্চে দেখতে পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মূর্তি সঞ্জয় শেঠ মহাশয়কে এবং তার সাথে মিশনের সমস্ত সন্ন্যাসীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ যে ভাষণ দিলেন সেই ভাষণের মাধ্যমে আপনারা শুনবেন। ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দরা জানালেন যে সঞ্জয় শেঠ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি অনেক সুন্দর ভাষণ দিয়েছেন এবং সব কিছু বুঝে ওঠার মতো
অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সঙ্গে থাকবে বলে। की मूक एंड बधिर शाखा के बच्चों की प्रस्तुति थी और अब मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जाए। माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए कृपया आगे आए। रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के सचिव श्रद्धेय श्री नित्य रूपानंद जी महाराज से निवेदन है कि वो भी माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे माननीय मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी झारखंड के रांची लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और अब ये पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर, आप आज इस प्रांगण में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। हृदय से बहुत बहुत आभार। माननीय जी की उदारता देखिए कि उन्होंने अपना उत्तरायण बेटी को पहना दिया जिसने परफॉर्मेंस दी। अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के सचिव स्वामी नित्य रूपानंद जी महाराज का स्वागत करें। हमारे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी और तत्वमसी पत्रिका के संपादक श्रद्धेय स्वामी वेदानंद जी का स्वागत करें। अब कृपया रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज श्री दीपक श्याम राय जी का स्वागत करें। हमारे रामकृष्ण विवेकानंद के वरिष्ठ सदस्य और जनरल बॉडी के मेंबर श्रद्धेय स्वामी अर्घानंद जी का स्वागत करें। हमारे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री श्यामल कुमार दास जी का स्वागत करें। अब मेरा निवेदन है कि रायगढ़ सेंटर के महान हमारे जी हमारे रायगढ़ सेंटर के महान स्वामी श्री सुखदानंद जी का स्वागत करें।
স্বামীজি একটু ঘুরে যান। स्वागत की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब मैं रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के सचिव श्रद्धेय स्वामी नित्य रूपानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें, लेकिन इसके पहले मैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा। वो ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद साहित्य के प्रखर अध्येता और आधिकारिक विद्वान हैं। उन्होंने बड़ी कुशलता से स्वामी नित्यानंद जी के बाद इस मठ का संचालन किया है, इस मिशन का संचालन किया है। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का। न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का। मुझे आईनों में न देख तू, मुझे खुशबुओं में तलाश कर, मुझे खुशबुओं में तलाश कर। स्वामी जी की शख्सियत ऐसी है। कृपया छुप कर बैठा ओ गंगाधर पर्वतवासी, ओ गंगाधर पर्वतवासी। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। কোথায়? चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणने निनगे नमो नमो, रमणने निनगे नमो नमो। चंद्रचूड शिवशंकर बोले भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत पावन दिन, जब देश और दुनिया देवों को देव महादेव आज पावन महाशिवरात्रि का पर्व, तो महाशिवरात्रि के पर्व के दिन एक बार भोले बाबा के लिए जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोले हर हर महादेव। आज इस दिन मेरा सौभाग्य है, इस पावन दिन पर इस परिसर में, जहां अब्दुल APJ कलाम, जहां प्रणब मुखर्जी दादा, जहां रामनाथ कोविंद जी जैसे ऐसे पुरुष
उनका आगमन हुआ। मेरे एक छोटे से कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता को आपने बुलाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं आपका ऋणी हूं। मेरे लिए गौरव की बात है, और मेरे लिए इससे बड़ा क्या गौरव हो सकता है। एक युग पुरुष जिसने दुनिया को सनातनी धर्म जो सेवा का माध्यम पूरी दुनिया को कहा, भाइयों तथा बहनों, आज ऐसे युग पुरुष की प्रतिमा का अनावरण करने का मेरा सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गया इस मूर्ति के अनावरण से। और मेरी प्रेरणा, और मैं कह सकता हूं कि पूरा 140 करोड़ देशवासी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से देश दुनिया की शक्ति बन रहा। आज इस मौके पर हमको एक बहुत जची लगा, और मैं बहुत अभिनंदन और आपका चरण स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस विद्यालय से आप पढ़कर संस्कार लेकर सेवा भाव से आप आगे बढ़े, ऐसे स्वामी नित्यारूपानंद जी, यह अद्भुत काम आपके द्वारा हुआ। मैं आपका बहुत अभिनंदन, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। इस अवसर पर स्वामी वेदानंद जी, दीपक श्याम रॉय जी, स्वामी अर्घनानंद जी, माननीय श्यामल कुमार दास जी, स्वामी सुखानंदन जी, भाइयों तथा बहनों, विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो है बच्चे बैठे हैं, यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर हो विकसित भारत 2047। मीडिया के मित्रों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जिसे पूरा देश उस प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। अभी तो 12 जनवरी को 163वीं जयंती 163 जयंती हम सब ने पूरे देश में मनाई, और स्वामी जी का प्रेरणा, स्वामी जी का कथन, एक नरेंद्र से दूसरे नरेंद्र तक क्या सेवा भाव हो सकता है। उस प्रेरणा से आज 140 करोड़ देशवासी अपने दिल में अपने हौसले से बढ़ रहे। मैं इस गोल्डन जुबली के अवसर पर किसी भी संस्था के 50 साल होना, और वो 50 साल अनवरत चले रहती, बढ़े चलो। कौन जानता था 1976 में जब आपने इसका बीज का रोपण हुआ था, मात्र 20 आदिवासी छात्रों को लेकर, और आज इन 50 वर्षों में जहां 40 संस्थाएं, झारखंड भी सौभाग्यशाली रहा कि झारखंड में भी हमारे 2 जिलों में, देवघर और मधुपुर में यह संस्था है। और आपने बताया कि कैसे सेवा भाव, नर सेवा नारायण सेवा, और कैसे 20,000 बच्चों को आप संस्कारित बनाया। मैं आपका
अभिनंदन करना चाहता हूं आपका चरण। इन 50 वर्षों का सफर कोई मामूली सफर नहीं है। इन 50 सालों के अंदर हर्डल्स भी आई होगी, लेकिन स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से वो सारी हर्डल्स तुरंत अपने आप में खत्म। जहां देश वंदे मातरम की 150वीं जयंती मनाया, एक ऐसा मंत्र जिस मंत्र से सिर्फ एक जयकारा लगाने से शरीर में ऊर्जा आती है और 140 करोड़ उस ऊर्जा से, और जो हमारे लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर की सरहद को देश की जो सुरक्षा, मां भारती की सेवा, प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए जब पूरा जीवन खपा देते हैं, उनका एक ही मंत्र होता है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब शुरू में हमने आप सबसे एक जयकारा लगाया कि भारत माता की जय, ये कोई नारा नहीं है, एक ऊर्जा है, एक जीता जागता मंत्र है, भारत माता की जय। हम सबके लोकप्रिय ऐसे प्रधानमंत्री, कवि हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत माता की जय, जिसके बोलने से ही हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, हम देश के प्रति नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का भाव झटता है। देशवासियों, जब मैं अपनी अंतिम यात्रा में होऊंगा, कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देशवासियों, जो मैं अपनी अंतिम यात्रा में होऊंगा और जो मेरी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो रही होंगी, तो देशवासियों कान लगाकर उन गंगा की लहरों में कान लगा के सुनना, उस गंगा की लहरों में से भी आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता की जय, ये अद्भुत एक टॉनिक है। आज जब हम बच्चों को देखते हैं, इनका हौसला देखते हैं, इनका जज्बा देखते हैं, इन जज्बे से आज देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत की ओर देख रही है कि ये युवा देश है, और आज से मात्र 4 साल बाद 2030 में जब भारत की आबादी मान लो 150 करोड़ होगी, आधी आबादी 75 करोड़ लोग 25 साल के नीचे होंगे। कितना अद्भुत देश होगा, 25 साल के नीचे 75 करोड़ लोग। क्या एनर्जी हो गया, क्या जज्बा होगा। उसी जज्बे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहचाना, और आज दुनिया भर में बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ भारतीय युवा बन रहे हैं। हर जगह भारतीयों का डंका पिट रहा है। दुनिया हतप्रभ हो रही है, दुनिया सो रही थी, दुनिया सोच नहीं पाई। हमारा चंद्रयान चंद्रमा को उतरकर, दक्षिण ध्रुव उतरकर पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। यह है हमारा युवा, हमारा साइंटिस्ट, ये भारत का कमाल। और आने वाले दिनों में जब युवा स्टार्टअप के माध्यम से अपने हौसले से बढ़ेगा, हमको वो भी याद है कि आज से 10 साल पहले सिर्फ देश में 1000 स्टार्टअप था, और आज इन्हीं युवा, जो युवा शक्ति आज आगे बढ़ रही है, जो स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा लेकर उनका मात्र दर्शन कर सामने टेबल पर विवेकानंद की फोटो रख दे,
प्रतिमा रख दे, अपने में आप में ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा से आज 2,09,000 स्टार्टअप इन 10 सालों में 1,000 से बढ़कर 2,09,000 स्टार्टअप। यह है भारत की ऊर्जा, और ऊर्जा स्वामी विवेकानंद। और ये 2,09,000 जो स्टार्टअप 22 साल के 23 साल के बच्चे, और उसमें भी 30 से 35 लाख बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। ये अद्भुत प्रयास। मैं तो रोजाना इन बच्चों के स्टार्टअप को देख रहा हूं, अद्भुत उत्साह। दुनिया के किसी भी युवा से कम नहीं हमारे युवा आज। इसीलिए पूरी दुनिया भारत की होती है। आज आप भैया बहन यहां उपस्थित हैं, मेरे बच्चे भी उपस्थित हैं। मैं 2-3 बात आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये जो बच्चे हैं, कल इसमें कि कोई एपीजे अब्दुल कलाम ही बनेगा, कोई प्रणव दादा निकल जाएगा, कोई रामनाथ कोविंद निकल जाएगा, कोई नरेंद्र मोदी निकल जाएगा। तो मेरा आप अभिभावकों से यह आग्रह है कि 18 साल तक इनको मोबाइल और टीवी से दूर रखो। मोबाइल आज ठीक है, आने वाले दिनों के लिए जरूरी है, किंतु प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, हम सबको सिखाते हैं कि मोबाइल दिन में कम से कम 2 घंटे मोबाइल से छुट्टी ले लो, हफ्ते में आधे दिन 1 दिन छुट्टी ले लो। जो हमारी सनातनी व्यवस्था है, घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन एक साथ बैठकर हम सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, दादी अम्मा से कहानियां सुनते हैं, उनसे लोरियां सुनते हैं। ये मोबाइल एक हर्डल आ गया है। तो 18 साल तक क्या हम इन बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रख सकते? ये आपको संकल्प लेने का दिन है। आइए हम सब ऐसे बच्चों को जो देश के भविष्य है, देश के कर्णधाता है, उनमें कैसे संस्कार आए, उनमें कैसे नेशन फर्स्ट का भाव आए। क्या स्वामी जी आप इसमें एक बड़ी लंबी रेखा खींचे है, और रामकृष्ण विवेकानंद मिशन अपने मिशन में सफल हो रहा है। और वो मिशन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक 2047 विकसित भारत संकल्प का पूरा नहीं हुआ। 100 साल जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, वो 100 साल कैसा होगा? वो 100 साल ताकतवर होगा। वो 100 साल दुनिया को देने वाला भारत होगा। मित्रों, अब पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। ये नया भारत न पीठ दिखाता है, न आंख चुराता है, न किसी के सामने हाथ फैलाता है। और नया भारत दुनिया को देने वाला भारत है। हम सब ने मित्रों देखा है अपने जीवन में कि दुनिया में पोलियो आया, दुनिया ने अपने को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद 20 साल बाद दुनिया ने अपने को सुरक्षित कर लिया। उसके 20 साल बाद हमको पोलियो का इंजेक्शन, पोलियो को ड्रॉप किया। हैजा आया, दुनिया ने अपने को सुरक्षित कर लिया। उसके 12 साल बाद हमको हैजा का टीका आया। लेकिन नया भारत को कमाल देखो, कोरोना आया। कोरोना में जिस दिन दुनिया ने वैक्सीन का इजाद किया, उस दिन भारत ने भी इजाद किया। एक नहीं 2-2 वैक्सीन का इजाद किया, और 200 करोड़ वैक्सीन भारत ने अपने नागरिकों को देकर सुरक्षित किया। और दुनिया के 128 देशों को भारत की बनी वैक्सीन भारत ने दी, और दुनिया भर के लोगों की जान बचाई। यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। एक दुनिया को हम एक परिवार मानते हैं। जो विवेकानंद की सोच थी, दुनिया के भाइयों तथा बहनों, हम वही मानते हैं। दुनिया के भाइयों तथा बहनों, उसी प्रेरणा से हम चलते हैं। और आज
जब इस प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज जब इस लंबी रेस में हम आगे बढ़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनकी सोच आज 140 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ा रही है, आज इस मौके पर मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा कि आइए हम, मेरा कोई इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम सब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। भाई बाल दिवस है 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू जी की शुरुआत हुई थी। मोदी जी ने कहा कि एक बाल दिवस जरूर मनाना चाहिए, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। दुनिया को पता नहीं था, हिंदुस्तान को पता नहीं था। देखो हमारा इतिहास, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने जो बलिदान दिया देश के लिए, जो बलिदान दिया धर्म के लिए, ऐसे दो साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह 9 साल की उम्र, 2 बच्चे थे, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 7 साल की उम्र। 9 साल और 7 साल दूध पीने का समय होता है। कितना बड़ा बलिदान! 9 साल 7 साल की उम्र में धर्म परिवर्तन नहीं किया, बलिदान के लिए चल निकले। और उसमें माता गुजरी देवी ने उनको सजाया, संवारा बलिदान के पहले, और कहा बलिदान हो जाओ देश के लिए, बलिदान हो जाओ धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन नहीं करना। और जब दोनों साहिबजादे जा रहे थे, भाइयों बहनों, दोनों भाइयों में तेरा से कहा सुनी हुई। छोटे ने कहा फतेह सिंह ने, भैया पहले तुम दुनिया में आए थे, इस बार पहले मैं जाऊंगा। छोटा वाला बोल रहा 7 साल का। बड़ा वाला जोरावर सिंह ने कहा, नहीं बेटे, नहीं भाई, दुनिया में मैं पहले आया था, इसलिए पहले जाऊंगा। ये बलिदानों की कहानी। अंदाज लगाओ, देश के लिए कुर्बान हो जाना, देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर कर देना, यही देश है। और उसी लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आओ 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाओ। आज पूरा हिंदुस्तान वीर बाल दिवस मनाता है, उन वीरों की कहानी कहता है। अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता, सावित्रीबाई फूले, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद मारो, नीलांबर पीतांबर, ऐसे वीर, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, ऐसे वीरों भारत में पैदा किया। आज जरूरत नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री जी की सोच देखो, पहले होता था कि 7 रेस को जनपद जहां से देश चलता था। मोदी जी ने कहा नहीं, अब पीएमओ का नाम कोई 7 रोज, कोई जनपद नहीं होगा, उसका नाम सेवा तीर्थ पड़ गया। उस सेवा तीर्थ माने सेवा के माध्यम से हम तीर्थ करेंगे 140 करोड़ देशवासियों का। और जहां नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जहां से देश चलता था, उसको बदल दिया। अब उसका हो गया कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, जहां से देश चले, कर्तव्य सिखाना। और जो राजपथ था इंडिया गेट, उसका नाम पड़ गया कर्तव्य पथ। और मजा देखो आप, उस स्थल पर गुलामी की जो जंजीरें थी, उसको जब तोड़ दिया गया, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू लगी, देश गौरवान्वित हो गया। लेकिन बहुत लोगों को पेट में दर्द भी हो। आज देश जब कर्तव्य पथ में जाता है, नेताजी की प्रतिमा को देखकर वहां शीश दिखाता है, नमन करता है। आज
इस मौके पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आइए हम देश को संस्कारी बनाते हुए धर्म मतलब सेवा, और सनातनियों में क्या सिखाया जाता है? हम सत्यनारायण पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं। उस कथा में भी छोटे से पूजा में हम ये नहीं कहते हैं सत्यनारायण भगवान आप हमको बड़ा पैसा देना, बंगला देना, गाड़ी देना, नहीं। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, हम उसी में कल्याण ढूंढते हैं। यह है सनातनी धर्म। अपने मातृभूमि को हम मां कहते हैं। एक जानवर गौ माता, गाय को मां कहते हैं, और गौ माता में करोड़ों देवताओं का वास। एक गौ माता की सेवा कर लो, समझो चारों धाम की यात्रा कर लो। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारा विश्वास। आज इस मौके पर मैं आप सबको यही आह्वान करने आया। यह अद्भुत देश है। यह देश में जन्म लेना ही एक पुण्य का काम है। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो भारत में जन्म हुआ। यह भारत की भूमि है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे भी भारत के लिए। यह अभिनंदन की भूमि, यह अद्भुत भूमि है। आज मैं सभी मंचासीन विद्वानों को एक छोटा सा गिलहरी में एक छोटा सा कार्य करता है। स्वामी जी, जो आपने मौका दिया, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा मेरा जैसे एक छोटा सा कार्यकर्ता के द्वारा, मैं अपने को धन्य, आज का दिन मेरे लिए, आज के दिन के गोल्डन डे हो गया मेरे। और ये अद्भुत मेरे लायक जो भी कार्य होगा, होमवर्क होगा, वो मेरे को जरूर सौंपेंगे। लेकिन एक आह्वान के साथ कि कोई कार्यक्रम आप करें, सबसे पहले सीमा पर जो लाखों सैनिक डटे रहते हैं, राउंड द क्लॉक 24 घंटे, जहां -40 डिग्री है, जहां सांस लेना दुर्लभ है, जहां ऑक्सीजन नहीं, जहां तापमान भी 50 डिग्री है, पहले उसको सैल्यूट करना है लाखों सैनिकों को, जिन्होंने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। आज इस मौके पर आप सबका अभिनंदन करते हुए, आज शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि को बधाई देते हुए, होली का महान पर्व आ रहा है, बैसाखी का पर्व आ रहा है, और आज इस भूमि पर, जहां ये भूमि बहुत पवित्र भूमि है, इसका चरण स्पर्श करते हुए, अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इलेक्ट्रिकल स्पीच, ये स्वामी जी का योग्य संतान है संजय जी, उनको ऊपर स्वामी जी का और भी आशीर्वाद बने रहे, ये मेरा प्रार्थना है। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी का भाषण बहुत ही प्रेरक और बहुत ही ओजपूर्ण रहा। उनके भाषण से हमारा मार्गदर्शन होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सभी लोगों से एक बार निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनि से मंत्री जी के भाषण के लिए उनका आभार व्यक्त कर दीजिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर उन्होंने एक पूरा उपन्यास लिखा द रिवर के नाम से 1946 में, और उसी उपन्यास पर 1951 में एक फ्रेंच फिल्म मेकर थे, उन्होंने द रिवर के नाम से ही एक 1 घंटे 30 मिनट की फिल्म बनाई है।
और जिसमें से 1 घंटे से ज़्यादा शूटिंग यहीं की गई है। वो मतलब पूरी जीवंत फिल्म है और मैंने वो फिल्म देखी तो उस समय के जो भी सामाजिक रीति रिवाज थे और उस समय जो कुरीतियाँ थी उनका बड़ा अच्छे ढंग से उसमें चित्रण किया गया है और उस आर्ट मूवी को कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। आज की हमारे लिए ये नमन की भूमि है कि इसकी इतनी अच्छी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आकर आज का वोट ऑफ थैंक्स कहें। ओम नमो शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मनं संगति परमेश्वर। ओम नमः श्री ज्योतिराजाय विवेकानंद सूरय सचिशुक स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। এতক্ষণ আমরা সত্যি বিবেকানন্দের ভাবে অন্য জগতে চলে গেছি এবং আমাদের চিন্তা মন বুদ্ধি পবিত্র হয়েছে, শুদ্ধ হয়েছে। এবং এই জন্য এই যে গঙ্গা পিছনে বইছে, ঠাকুর মা মঞ্চে রয়েছেন, স্বামীজি আমাদের হৃদয়ে রয়েছেন, প্রেরণা সারাক্ষণ আমরা পাচ্ছি। মোস্ট অনারেবল মিনিস্টার অফ স্টেট অফ ডিফেন্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মিস্টার সঞ্জয় শেঠজি, রেসপেক্টেড মিশন সেক্রেটারি স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ, स्वामी अर्घानंद जी महाराज, स्वामी सुखदानंद जी महाराज, मिशन वाइस प्रेसिडेंट दीपक सामराज जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी श्यामल दास जी, other dignitaries, guests, teachers, staff, students and all participants at the meeting. Our wonderful meeting has been a great success. For the overwhelming success, I on behalf of Ramakrishna Vivekananda Mission extend our very hearty and cordial thanks to our most respected minister, Srijukta Sanjay Sethji. Our hearts are so full of sincere affection, greatest reverence and highest admiration to you for visiting our mission campus in this golden jubilee celebration. We pray to the Almighty Shiva and also to Swami Vivekananda to bless you with long life, health and strength to enable you to carry on with good work that has been so heavily done by you. আমি কি হতাম না, সেজন্য তাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমরা ধন্যবাদ জানাই আমাদের মিশনের স্টাফ, টিচার, ওয়ার্কার, যেভাবে যেখানে জড়িয়ে আছে সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিফোর আই কনক্লুড আই therefore thank you all once again for your excellent cooperation and the occasion will remember everybody share in its success. Thank you. সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ সকলের প্রতি রইল, স্বামীজির প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম রইল, ঠাকুর মায়ের প্রতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম রইল এবং এই মঞ্চ থেকে আমরা শপথ নেব আমাদের জীবনকে গঠন করতে, চরিত্রকে গঠন করতে, মনকে পূর্ণতা দিতে আমরা স্বামীজির আদর্শ পালন করব। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय, स्वामी नित्यानंद महाराज जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, कैलाशपति महाराज जी की जय, गंगा माई की जय, भारत माता की। আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ হলো। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কার। बांग्लादेश चुनाव के बाद दिख रहा है बहुत सारे जामात ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी हो गया है। भारत बांग्लादेश फेंसिंग के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? देखो आज अरे घूम नीचे करना की बात पूछ रहे हैं के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन तो घूम तो लो ना, मेरा सौभाग्य रहा घूम দেখা যাচ্ছে না, কোনো ব্যাকটো না ছাড়াও ঘুমটা বের করো। मिशन में युग पुरुष जिनकी प्रेरणा से
पूरा देश आगे बढ़ रहा है स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण कर। और यह स्थल बहुत पवित्र स्थल है जहां से लगभग 20,000 ऐसे बच्चे जो संस्कारी होकर देश के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वामी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिस स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को जब देश युवा दिवस मनाता है तो स्वामी जी ने कहा था कि हमको 100 ऊर्जावान युवा दे दो, नया भारत देंगे। और दूसरे नरेंद्र जिनकी जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर नरेंद्र कहते हैं 1 लाख युवा दे दो तो विकसित भारत 2047 दे। तो आज देश उसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। जहां आप युवा के बारे में बात कर रहे हैं, आपने जैसे बात कही है वहाँ पे ममता बनर्जी बंगाल में भाता दे रही है, आज से स्टार्ट हुआ वो भाता, क्या कहेंगे सर? देखिए आज सिर्फ हम कोई राजनीतिक करेंगे। आज बहुत पवित्र स्थल पे आए हैं। हाँ, शिवरात्रि का दिन है। स्वामी विवेकानंद के नाम से इतना पवित्र काम हो रहा है, इसलिए आज स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा हम सब में 140 करोड़ देशवासी उसी प्रेरणा से आगे बढ़े हैं और उसी स्थल पर हम आए हैं। मेरा सौभाग्य। एक सवाल है, काल देखा गया कि आसाम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान उतर गया है और उसके बाद जो बंगाल में ऐसा कोई सोच है आपका, क्योंकि यहाँ पे चिकन लेग है? मैंने कहा ना, जब इस परिसर से कभी बाहर आएंगे, कभी आएंगे तो बातचीत करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল কিনবেন বা বিক্রি করবেন, এক্সচেঞ্জ করতে চান পুরনো ফোন? পাপ্পু মোবাইল, নৈহাটি হাজিনগর ফায়ার ব্রিগেডের ঠিক পাশে আপনার মোবাইলের সেরা ঠিকানা। স্যামসাং, রেডমি, রিয়েলমি, ওপো, ভিভো, আইফোন সহ যে কোনো ব্র্যান্ডের মোবাইল এখানে পাবেন 50 থেকে 80% ছাড়ে, তাও আবার গ্যারেন্টি সহকারে। হোলসেল ও রিটেল দুই পাওয়া যায়। এছাড়াও আছে মোবাইল কভার, টেম্পার্ড গ্লাস, ইয়ারবাডস, স্মার্ট ওয়াচ, এক ছাদের নিচে সব। দোকান খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত। আজই চলে আসুন পাপ্পু মোবাইলে। যোগাযোগের ফোন নাম্বার 9748482727। এছাড়াও ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে আপনি সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাথে।